small intimate nikah or my big fat desi wedding. जहेज में क्या क्या मिला है? मुंह दिखाई में husband ने क्या दिया है? ढोलकी मायो, मेहंदी barat, walima and everything in between. Let's talk about desi weddings. This is the GupShupShow. Hi, my name is Khawla. Assalamu alaikum and my name is Arooj. Welcome back to another episode of the GupShupShow. In this episode, we're going to be talking about desi weddings. So Arooj, how was your wedding? The big fat wedding? I didn't have a big fat Pakistani wedding. But we had a small intimate nikah first. Yeah. Because we were planning on having our wedding in Pakistan and doing it like big there. But because of COVID, we had to do a small barat, a rukhsati. We did a little rukhsati in the summer. It was like 50 people. So that was it basically. And then I think a year and a half later, we had a walima here. Yeah. And that was, I think, 100 people. Yeah. How was that? That was, you know what it was? क्योंकि हमारे शादी में और रुखसती में उसके बाद मैं शिफ्ट हो गई मुझे आई थिंक ऑलमोस्ट साल हो गया था एंड फिर हमारा वलीमा हुआ तो वी वर ऑलरेडी इन दैट फेज कि साल हो गया अब क्या करना वलीमा लेकिन कोविड की वजह से कोई चीज़ खुली भी नहीं थी एंड हिज फैमिली ऑब्वियसली वांटेड टू डू समथिंग एज वेल so they really wanted a walima so we did a walima here in London. Yeah. But so it was so spread out because nikah और रुखसती के बीच में 1 साल का गैप था फिर उसके और उसके बीच में बारात और वलीमे के बीच में फिर 1 साल 1.5 year का गैप था तो इतना टाइम बीच में था वो एक मजा जो होता है वो नहीं रहता ना अगले दिन हाँ then you just over and done with it and then you're एक चीज से फारिग हो then you have to plan it again and even my wedding I planned it like twice because I planned it once. मैं पाकिस्तान गई मैंने वहाँ सारे हॉल बुक किए लहंगे की पेमेंट वगैरह की और फिर वो कैंसिल हो गया फिर मैं हॉलैंड जब आई फिर हॉलैंड मैंने फिर से प्लान किया so it was it was stressful. It was stressful. It wasn't, but I'm really when I look back on it, I'm happy that we did a little small gathering instead of a big bang, which we were initially planning to do. Yeah. Because we saved a lot of money. And I really think now that looking back on it, you know, having the right partner is the best thing. So it's not how big you celebrate it. Obviously, I do get sometimes hota hai ki agar dekho ki the big mehndi, we didn't have a mehndi. Yeah. And I did have a small dholki, but we didn't have like a big mehndi and joint dances and whatever, which we were initially planning to do. But oh well. I got a good partner, so yeah, that's the best part. And also, like, I think especially in our community, it's so much about having everything perfect. कि decoration perfect होनी चाहिए, lehenga perfect होना चाहिए, venue perfect होना चाहिए, खाना perfect होना चाहिए, and there's so much pressure of everything being perfect that actually adds so much stress on the family of just having, you know, everything perfect. I would say I have a different perception of the Pakistani wedding. Instead of having everything perfect, they just have कि हर चीज़ होनी चाहिए खाना होना चाहिए DJ होना चाहिए और दूल्हा दुल्हन और गेस्ट वगैरह उनको दे दो कार्ड भी लास्ट मोमेंट में वो जाते हैं 2 हफ्ते पहले कार्ड लेकिन पहले सबको पता होता है कि उस तारीख को होगी कार्ड भी आ रहे हैं तो 2 हफ्ते पहले तो कार्ड आते हैं सारे so I don't think it's that precise time management wise and stuff like that because you know Pakistani weddings no one arrives like on time. Never. पता है यूके में लोग टाइम पे आते हैं दुबई में कभी भी दुबई में अगर इवेंट हो रहा हो तो like you know that the दुल्हन is gonna walk in an hour later like it's always so late लेकिन यूके में मैंने नोटिस किया है कि अगर इधर कोई भी शादियां वगैरह होती तो लोग टाइम पे आते हैं पता है Were you on time on your wedding? I was on time on my wedding. Yeah. लेकिन my wedding was separate so men were separate and women were separate but in the end like my husband came and then we took our pictures together and then it was mixed लेकिन yeah I was on time and everything was on time for my wedding because Dubai में like the halls close at a certain time so everything had to be before then. Yeah. मेरा था कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट से मैंने पूछा था कितना टाइम लगेगा but she took longer
than she initially said. I think she said she took almost an hour longer than she said. So we were running behind. So I was late, even though I planned it like almost precisely. Yeah. But we did all we wanted to do in that time. I did my, obviously, knowing me, I like games, so I did a game on my wedding as well. Yeah. And cut the cake and stuff like that. वो सारी जो चीजें हमने करनी थी, we danced a lot. So वो everything that was done. Yeah. मैंने तो ना, मेरी makeup artist ने मेरा makeup or everything, we got done 4 hours before the actual walk-in and the barat. और जब मेरा makeup पूरा हो गया था ना, तो like we had the makeup done first. उसके बाद तैयार होकर then we had our bride and groom photo shoot. तो फिर वो करने के बाद फिर उसमें बारात में अभी भी 3 घंटे थे. तो we're just like, okay, what do we do now? हमने ना McDonald's order कर लिया. Oh, did you? So we were literally, और पता है जब जिस hall में हमने book किया था ना, they gave us like a free like suite, and it was such a nice suite. तो उसमें फिर like मेरे husband बैठ कर आराम से McDonald's खा रहे, अपनी बातें कर रहे हैं. फिर उसके बाद like there were still 3 hours because he had to go back and then come in like with the barat. So it was just so long, and just sitting there that long, like with the makeup, with the jewelry, with the like heavy dress, it's exhausting. So like if I was to go back and do it again, I would definitely do like a small intimate wedding, like just at home, have a few people there, like wear a nice like, you know, dress and everything, like, and just have it much smaller, because I feel like it's just a lot easier and it saves so much money and it's less stress as well. Yeah, it does. It's like, but also at the same time, you know, with us, is my dad had कि उसको नहीं बुलाया, उसको लेकिन हमने तो निकाह ही इस वजह से छोटा किया था क्योंकि हम शादी बड़ी करने लगे थे. तो फिर मैंने कहा निकाह तो हम इंटीमेट छोटा सा घर में कर ले, वो तो हम फैमिली वाले, वो फैमिली वाले, and that's it. But you know, it's then you feel guilty कि यार उसको नहीं बुलाया, उनके भी हम गए थे, and you have that. किसको कि हर किसी को बुलाना. Yeah, दिल तो चाहता है, लेकिन yeah, you can't fit, so you have to make cuts, and yeah. But what are the things that you really like about Desi weddings? I just love कि एक हफ्ते पहले से डांस प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती हैं. एक हफ्ते क्या, 2 महीने पहले से डांस प्रैक्टिस होती हैं. Like I love the dance practice, even though like मुझे बिल्कुल भी डांस करना नहीं आता, लेकिन like मैं ना, मुझे हर दफा मेरे कजिन्स ना लड़का बना देते हैं क्योंकि लड़के तो no. And I'm happy with that. I am completely happy. So you wear like a pagdi and I wear the pagdi. I do like the guy poses and everything. Like I'm completely chill with that. I don't mind at all because मेरे अंदर ना वो लचक नहीं है. Yeah. Like I just can't dance. I love that. I love like the whole dance vibes and everything and the decor. अच्छा फिर अच्छा ये बंदा आ रहा है, ये बंदा आ रहा है. अच्छा नानी उस टाइम पे लैंड कर रही है, मामू उस टाइम पे लैंड कर रहे हैं. मतलब you know, just the gathering, जो सब जमा हो रहे होते हैं. And like the whole vibe of that, I just love it. What about you? I gotta say that तैयार होना and the dance. I love dancing, so that's I like doing dance. मैंने भी काफी लोगों की शादियों पे हमने डांस किया. मुझे पता है वो, और पता है जब अपनी शादी की बारी आती है तो फिर तो सारे के बच्चे होते हैं, तो कौन करे तुम्हारे भाई, तो हम अपने बच्चे पकड़े होते हैं. But I danced. A lot of people performed at the weddings, मेहंदियों पे and stuff, so I did that as well. I love doing that. And खाना. Yeah, the food's so good. खाना जब बूफे लगता है और बूफे लगने से पहले भी वो जो उसकी जो सेम की वो जो स्मेल आ रही होती है, बूफे लग रहा है, मुझे मैं तो कोने से ही देख रही होती हूँ, वो सारे जा रहे होते हैं इतने बड़े क्या है अभी खुलेगा. And then yeah, I love wedding food. Yeah, me too. What don't you like about Desi weddings? जो लोग जो इतना लेट आते हैं. Oh, that's true. लोग जो इतना लेट आते हैं. The first time that we went to Pakistani wedding in the Netherlands, उन्होंने जितना टाइम हॉल का लिखा था, हम पहले वहां पहुंच गए थे. दुल्हन के माँ बाप भी नहीं आए थे तब. Oh my God. और हम खाली डीजे भी नहीं था और हम खाली बैठे हुए. Yeah. फिर मेरे पापा जल्दी करो. वो जो होता है ना, एक तो बंदा तैयार हो रहा है और फिर जो मर्द खड़े होते हैं, वो मर्दों ने तो यार शर्ट पहनी होती है बस, वो तैयार हो जाते हैं हल्के से कंघी की. औरतों का तो कितना टाइम लगता है. एंड देन वो खड़े होकर जल्दी करो. वो उन्होंने हाल कार्ड पे देखो, उन्हें कितना बुरा लगेगा हम लेट पहुंचेंगे. एंड देन वी अराइव्ड एंड वी वर द ओनली वंस. तो अब हमें पता होता है कि 7 बजे लिखा हुआ है ना, तो हम 7:30 इस तरह निकलते हैं. हम भी यही करते हैं. दुबई में तो कोई भी टाइम पे नहीं आता. और पता है इवन जो लोग टाइम लिखते हैं ना कार्ड पे, they do it कि अच्छा अगर 7:30 लिखा है तो मतलब 8:30 तक तब तक हम शुरू करें. हाँ. तो like everybody knows
कि you just arrive like fashionably late. ना, लेकिन पता है क्या, पाकिस्तान में जब मेरी शादी का हॉल था ना, उस पे आई थिंक इट वाज ओनली 4 5 hours. Yeah. तो अगर घंटा वो लेट आए, उसमें बीच में तुमने रुखसती करनी है, बीच में 1.5 hour तुम खाने का काउंट कर लो, टाइम यूं जाता है तो पता भी नहीं चलता. सो आई सेड टू माय डैड कि अगर आप पाकिस्तान में आप कार्ड बांट रहे हैं तो आप लोगों को कहना कि प्लीज टाइम पे आना, क्योंकि हम टाइम पे हर चीज करके हम खत्म कर देंगे. पाकिस्तान में तो लाइटें ऑफ करना शुरू कर देते हैं हॉल की. अब कर देते हैं ऑफ. और अनदर थिंग दैट आई डोंट लाइक इस पाकिस्तान में, यार किसी की शादी हो रही थी ना, कोई जरूर नाराज होता है. Yeah. एक रिश्तेदार जरूर नाराज होगा, उसको पहले कार्ड दिया, मुझे बाद में दिया. Yeah. खाने का उसको पहले पूछा, मुझे बाद में. और कोई हमारे नकली उठ के जरूर जाता है. Yeah. ताकि वो रोकेंगे, यार हम तो जा रहे हैं. Yeah. हम तो जा रहे हैं, तुमने उसको पहले कहा, हमने कहा हम जा रहे हैं, हम नहीं खाना खा रहे. Yeah. नहीं ना, ऐसे ना करें प्लीज, रुके. मैंने अपने पापा से कहा था, पापा अगर मेरे शादी में कोई उठ के रूठ के जा रहा है ना, उसको पूछा, उसको नहीं पूछा, मुझे फोटो के लिए नहीं बुलाया, मुझे यूं नहीं किया, वो जा रहे हैं यार, उनको जाने दो. Yeah. मेरी आपकी बेटी की शादी है, एक ही बेटी है, उसकी आप शादी एंजॉय करना, जो नाराज होकर जा रहे हैं ना, बाद में निमटते रहना. लेकिन उस टाइम पे आपने, क्योंकि इफ दे डोंट रिस्पेक्ट, दे मेक इट अबाउट देम. Yeah, that's true. दे मेक इट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट देम. एंड आई थिंक कि उसमें छोटी छोटी चीजों पे क्या बंदा नाराज हो यार. कि उसको दिया, और शादी में जब गिफ्ट्स भी जब देते हैं तो उसको दी शॉल, मुझे नहीं दी शॉल. उसको सूट आ गया, मुझे सूट नहीं आया. Yeah. और ये सूट देने का कॉन्सेप्ट भी मुझे इतना अजीब लगता है कि शादी इज लाइक बिटवीन द गाय एंड द गर्ल, लेकिन उसमें फिर पूरी फैमिली को गिफ्ट देना एंड लाइक गोल्ड देना या कपड़े देना. और हमारे यहाँ तो लाइक इन माय फैमिली, आई डोंट नो इफ यू हैव इट इन योर्स, तो जो लड़के की खाला, जितनी भी खाला, मामू और फप्पो एंड चाचूज, उन सबको भी मतलब सूट या कपड़े वगैरह देते हैं. तो लाइक we didn't give it to like my in-laws, क्योंकि उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि माशाल्लाह like there's like 7 khalas and like a huge family माशाल्लाह. तो they were just like there's just no need of doing that. हमने भी नहीं किया, क्योंकि हमारी शादी एक तो हो भी रही थी यहाँ पे, फिर उल्टा ये भी था कि कोविड की वजह से इतने कम लोग आ रहे थे, एंड देन दे डिडंट डू इट, वी डिडंट डू इट ईदर. एंड आई थिंक इट्स जस्ट जो क्लोज जो फैमिली थी ना, सो माय ब्रदर्स एंड माय भाभी and stuff and his sister and brother-in-law, इस तरह जो क्लोज थे उनको बस बंद करें. आई थिंक करीब का जो रिश्ता है बस ठीक है, एक्सटेंडेड फिर उस खाला खालुओं, फिर उनके बच्चे, यार इट्स अननेसेसरी. पैसा इस तरह यूं वो जाया करने की बात है. लाइक दैट इज वेरी कॉमन कि लोगों को मतलब ज्यादा फप्पो और खाला उन सबको भी लाइक कपड़े वगैरह देना. इट्स जस्ट आई फील लाइक इट्स जस्ट एडिशनल स्ट्रेस for no reason. तो पता क्या, फिर बंदा यूं इस तरह भी तुम सूट यूं इस तरह नहीं दे सकते कि अगर इस if it's just वो शादी अभी हो रही है, you can't just give them like cheap yeah, you have to get like nice सूट देने पड़ते हैं, लेकिन it's just unnecessary money that you're giving away. फिर इस तरह भी नहीं कर सकते कि एक को तुम इस तरह दो, you have to give them all equally. And also like the concept of Jahez, कि जहेज देना है, लड़की के कमरे में बेडरूम सेट डलवाना है, गोल्ड इतना होना चाहिए, इतने 10 सूट होने चाहिए, और all of that is so much pressure on the girl's family कि मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए. और कभी कभार तो रिश्ता जैसे ही पूरा हो जाता है, लाइक दे अग्री ऑन द रिश्ता, तो द नेक्स्ट थिंग इज लाइक अच्छा जहेज कितना देंगे, जहेज में क्या देंगे, अच्छा बेडरूम सेट डलवाएंगे, अच्छा मेरे बेटे को तो गाड़ी चाहिए, अच्छा मेरे बेटे को तो अपार्टमेंट चाहिए. या तो हाँ, इट्स लाइक honestly what kind of deal is this? तो हम तुम्हें अपनी बेटी दे रहे हैं, अब उससे बढ़ के तुम्हें डिनर सेट भी दें, तो फलां भी दें, तो वो भी दें. या तो लाइक आई नो समवन कि जिनका रिश्ता हो गया था, लाइक दे अग्रीड ऑन द रिश्ता एंड एवरीथिंग, एंड देन जब उसकी डेट फाइनल करने के लिए आए ना वो लड़के वाले, और डेट फाइनल करते वक्त उन्होंने बोला कि अच्छा आप जहेज में क्या देंगे. तो द डैड सेड कि मैं अपनी बेटी दे रहा हूँ, लाइक इज दैट नॉट इनफ. तो बोला कि नहीं हम तो अपनी बेटियों को ना एक अपार्टमेंट दे रहे हैं जहेज में, आप अपनी बेटी को क्या देंगे. And like the dad was just like, is this a marriage or this a business deal? कि शादी हो रही है, क्या है, एक अपार्टमेंट हम दे रहे हैं, वो तो तुम्हारी इतनी वो है, तो तुम तो वाली हैसियत है, तो अच्छा ठीक है, अच्छा है दो. लेकिन मतलब दूसरे से एक्सपेक्ट करना कि आप भी, क्योंकि हम दे रहे हैं अपनी बेटी को, वो अपनी बेटी को दे रहे हैं ना, उनकी बेटी का फायदा हो रहा है.
तो अगर फॉर एग्जांपल उसके अब्बू देते भी हैं अपार्टमेंट, तो वो बेटे का अपार्टमेंट तो नहीं है ना, वो बेटी का अपार्टमेंट है, तो उसमें लड़के वाले आकर क्यों डिमांड कर रहे हैं उस चीज की? Like what is that? और I even know people कि जिन लोगों के रिश्ते love marriages के, like they had a love marriage रिश्ता for years, और in the end वो जहेज की वजह से रिश्ता खत्म हो गया, क्योंकि the लड़की no not जहेज, क्या बोलते हैं जो लड़का देता है, हक मेहर। हक मेहर, वो हक मेहर के लिए वो खत्म हो गया, क्योंकि हक मेहर में उनको सोना चाहिए था, या अपार्टमेंट चाहिए था, या घर चाहिए था, या ज़मीन चाहिए थी, या इतना पैसा चाहिए था, तो हक मेहर के लिए वो ख़त्म हो गया. तो इट वर्क्स बोथ वेज, यू नो, कि लड़के वाले जो जहेज की डिमांड करते हैं और लड़की वाले भी जो हक मेहर की डिमांड करते हैं. So it's not a business deal. I think जो हक मेहर का तो जो वो पूछते हैं, that it's like from a security of a woman point of view, but from a guy that is like asking हमें गाड़ी चाहिए और हमें यूं चाहिए और फलां चाहिए. And I also think like I think girls should take more steps into that, like we don't need anything, don't put that pressure on your parents, especially like कभी कभार मैंने सुना भी है कि लड़कियां खुद डिमांड करती हैं कि मुझे फ्रिज भी दिला के दो, मुझे यूं भी दिला के दो, मुझे ये भी करके दो, and I need that, and I just think it's so, and if you're working hard for that money and you तुम्हारा अपना पैसा कोई बात नहीं, 100 बिस्मिल्लाह लो, लेकिन I don't think you should demand those kind of things from your parents, like सोना. I think पता है क्या, माँ बाप का, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को जितना हमारे पास हो हम जितना दे सकें, but at the same time save something for their pension as well. वो अपना हज करें, अपना उम्रा करें, it's their hard work money. अब ये तो नहीं कि हम अपनी बेटी के लिए, I've heard कि लोग क्या करते हैं, इतना कर्जा ले लेते हैं बेटी की शादी के लिए, क्योंकि हमने अच्छा वो ससुराल, उसके ससुराल में उसकी नाक ना नीचे हो, उसकी वो ना हो, उसकी बेइज्जती ना हो, तो हम उस वजह से इतने कर्जे लेके, खाली पैसा से होती है इज्जत. तो वही होना है कि मतलब जितना मेरे अब्बू बोलते थे हमेशा, पैसा फेंक तमाशा देख. मेरे अब्बू हमेशा बोलते थे लाइक कि हर चीज मतलब जितना पैसा दोगी उतना ही मतलब रिस्पेक्ट या इज्जत या फायदा उतना वो होगा. लेकिन आई फील लाइक स्पेशली इन दिस डे एंड एज कि दैट इज सो अननेसेसरी कि इतना ज़्यादा खर्च करना, और खाली इवन फॉर जहेज, कि जहेज में सिर्फ कपड़े और जूते और ये गोल्ड तो नहीं होता, फिर वो लोग हाउस होल्ड अप्लायंसेस कि अच्छा फ्रिज भी डालना है, माइक्रोवेव भी चाहिए, बर्तन भी देने, बेलन भी देना है, केटल भी देनी है, टोस्टर भी देना है, फिर वो सारी चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं. लाइक इवन फॉर माई जहेज, इवन दो मैंने अपनी अम्मी को बहुत मना किया कि यू नो आई डोंट नीड ऑल ऑफ दिस स्टफ, क्योंकि मैं इन लॉज के साथ रहने का प्लान था. So like, but she gave like a balan, and she gave like bed sheets and towels and a kettle and पतीलों का उन्होंने मुझे दिया. Like I'm just like, मैं क्या करूँगी सबका, मैं रखूँगी कहाँ? तो मैंने भी जब अपने जो पापा का, जो मेरी जब शादी भी हुई, because my dad was really like, oh मेरी एक ही बेटी है, मैं उसका वो करूँ, लेकिन कोरोना की वजह से वो नहीं हुआ. And then even with like the wedding expenses, I didn't even tell him like all the expenses. मैं आधी प्राइस बताती थी. फोटोग्राफर बहुत सस्ता मिल गया, तो क्या तुम 200 का फोटोग्राफर मिल गया, तो मैं कहती मुझे वो डीजे भी वो सिर्फ वो फ्री में कर रहा है, वो मैं जानने वाला है, तो वो like I would just give them like small amounts, because I didn't want him to spend all the savings like on me. Even सोने वगैरह का, कि मैंने पापा से कहा था कि बस मुझे नहीं चाहिए, तो कह रहे नहीं, एक सेट तो हम देंगे, like come on, you have to get something, we're not gonna give you like empty handed and stuff. And then we picked out one set, but that has more emotional value for me than like having actual, I have gold. तो वो I think gold का भी जो आजकल है, आजकल लड़कियां कौन सी, हम तो नहीं पहनते, मैं तो बिल्कुल गोल्ड नहीं पहनती, कि असली गोल्ड का आर्टिफिशियल इतनी अच्छी चीजें मिल गई हैं. So I think like जितना वो कहते हैं ना कि जितनी चादर हो उतनी पैर फैलानी चाहिए. So I think even girls should limit. I know हर एक लड़की की ख्वाहिश होती है, we want that, but at the end I think what's the most important thing is having a good partner and not having all these material things. Because material चीज वो चली जाएंगी, कपड़े छोटे हो जाएंगे या खराब हो जाएंगे या फैशन से निकल जाएंगे, गोल्ड का रेट गिर जाएगा, गोल्ड पहना नहीं जाएगा, like you know those things will come and go. Lekin the main priority should be like, you know, the life that you're gonna spend with your partner. And
leaving your parents in a good position कि वो कर्जे में ना डूबे हुए हों like अच्छा ठीक है बेटी अब शादी होकर चली गई वो चीज़ खत्म हुई तो अच्छा भी कर्जा उतारना है you know वो चीज़ and especially अगर तुम्हारे और भी siblings हो yeah think about others as well. I do fully understand if you have a ख्वाहिश कि मैंने वो इस तरह करना है. Like even on my nikah, I didn't even wear a wedding dress. It's a dress that I bought initially to wear on my brother's wedding if he were to get married. yeah लेकिन उस टाइम पे भी मैंने सोचा यार हम मेरे पाकिस्तान में हमारा इतना खर्चा होगा. I want to have a really nice dress. इतना बड़ा हॉल है, इतने लोग हैं, multiple functions, and then you know what? Let me just save my money and do like a small nikah. And at the end, I'm really happy that if I were to do it again, I would definitely pick out a really nice nikah dress. yeah Because alhamdulillah I was happy with what I had, but still I would get a bigger one अगर मुझे पता होता. क्योंकि मैंने अपनी ना रुखसती पे मैंने अपनी मेहंदी का ड्रेस पहना था क्योंकि मेरी शादी वाला का बना ही नहीं. अल्लाह वो था उस कोरोना की वजह से सारी चीजें बंद थी तो मेरे वो रेडी नहीं हुआ. So luckily my मेहंदी dress had like a लाल वो था lehenga and orange color की shirt थी. अच्छा So I just wore that and then wore with a golden dupatta and mixed it a bit up. yeah So इस तरह compromise हो के यार काम हो गया बस. हाँ काम हो गया हो गया फारग. You know my dad used to say कि उसका इसका फिर वो काम करके ना इसको फारग करते हैं. And then my brother said नहीं फारग नहीं मतलब सही तरह वो करना है. But that was just the word that he used. क्या फारग करना है यार इसको फारग करना है. We also asked you guys for your best and worst moments from DESI weddings. So Arooj, what did people say? So we had one that don't dance too much because it's your sister's wedding. Yeah. तो क्या हो गया वो मुझे ये भी जो अगर लड़की के माँ बाप ज्यादा हंस रहे होते हैं स्माइल कर रहे हैं तो कहते हैं कितने बुरा लग रहा है बेटी की रुखसती कर रहे हैं वो इतना खुश है. Yeah. और पता है मेरी मेहंदी वाले दिन ना like I was proper like happy and I'm like smiling all the time and मैं proper picture मेरी अम्मी मुझे आकर बोलती नहीं कि बेटा इतना मत हंसो तुम्हारे ससुराल वाले देख रहे हैं कि तुम खुशी खुशी जा रही हो. थोड़ा सा तो रो थोड़ी सी सांस बैठो. And like even रुखसती पे मैं अपनी रुखसती पे बिल्कुल नहीं रोई. नहीं रोई नहीं और मैं तो बिल्कुल मार कर रही थी लेकिन मुझे तो इतना हो रहा था कि मैं जा रही हूँ. मैं तो हंसी से गई हूँ. हाँ मार बजा रही सी है. Off I go. Yeah. और my in-laws were so late at the wedding so I was not able to enjoy my wedding properly. Yeah. All been there. लेट टाइम वो तो हमने कहा है कि भाई कभी कभार तो बहुत ज्यादा लेट हो जाती है हद होती है. एंड पता है मुझे ये भी बहुत बुरी चीज लगती है कि अगर कहाँ वो तुम्हारी मुमानी अभी लेट है वो आ जाए तो फिर हम शुरू करते हैं वो अभी आ रहे हैं तो वो नहीं यार उनको भी लिहाज करना चाहिए कि किसी की बेटे की शादी है हमें टाइम पे आना चाहिए. वो बंदा हॉल में आ जाए सब का वेट जो करते हैं ना उस चीज से मुझे बड़ी चिढ़ होती है. Okay, and I had to wear a wedding dress which my mother-in-law picked out for me, which I did not like at all. But my mom said कि नहीं बुरा लगेगा अगर तुम नहीं पहनो तो पहनो. Yeah, I've heard that one a lot as well कि अगर कोई चीज़ पसंद ना आई भी हो ससुराल वालों की तरफ से तो like दिल रखने के लिए like you still have to wear it. I think ये जो चीज़ें होती है ना जब रिश्ता वो हो रहा होता है तो बंदा ना उस वक्त कहते हैं कि आप इस तरह कीजिएगा कि मैं आपको ना वो स्टाइल बता देती हूँ कि मैंने ये देखी या आप इस तरह करें आप अपनी बजट बता दें तो मैं उसके मुताबिक मैं अपनी ना पसंद की वो ले लूंगी. क्योंकि फिर वरना ये ना हो कि आप इतने पैसे नहीं जाया करें और फिर मुझे पसंद आए तो मैं आपको वरना स्टाइल और कलर्स बता देती हूँ या आप मुझे साथ ले जाएं. मतलब अगर बंदे की पसंद ऑलरेडी पता हो जैसे मेरी सास की पसंद इज अमेजिंग तो मुझे पता है कि अगर जो भी वो चीज़ पिक करेंगे मुझे पसंद आएगी तो मतलब अगर वो वाली चीज़ हो ना तो like then it's fine because you trust उनकी fashion sense. Yeah. तो in that case it's fine. लेकिन अगर किसी का style is like very like पेंडू and you just like okay I would never wear that. Yeah. लेकिन you have to wear it क्योंकि the in-laws got it. Yeah. So that's like a difficult situation to be in. Yeah, इस वजह से बंदा पहले से ना कह दे. I don't think there's a harm in it. तो अपनी अम्मी को कह दो कि वो कह देना उन्हें क्या इस तरह करना है वो ना करना you know. Yeah. दिल रख ले फिर वो बुरा भी नहीं लगेगा. Let's see. Event started so late so we ordered McDonald's. I've heard that one. Yeah. You did that one. नहीं तुम्हारा तो गैप था बीच में. मैंने भी एक दफा मेरे साथ हुआ था कि मैं I went with one of my best friends and we went to a wedding and
we went to a Hindu wedding and ना घर में बिरयानी पकी हुई थी. Yeah. तो मैंने अपने पापा से कहा आप खाएं बिरयानी, मैं तो जा रही हूँ भाई शादी में. Yeah. और इतनी मेरी शौकियां मारी ना कि मैं शादी में जा रही हूँ, मैं तो शादी का खाना खा के जाऊँ. I didn't know that Hindu weddings had vegetarian food. वहाँ दाल चावल बनी हुई थी. तो फिर दाल चावल थी और कड़ी पकौड़ा तो चलो ठीक है, वो भी ठीक है. But then it was only दाल चावल and stuff. And then मैं अपनी सहेली को कह रही यार मैं बिरयानी छोड़ के आई हूँ घर. And then हाँ, मैं जब घर आई ना मैंने कहा पापा वो ना उधर से वो वेजिटेरियन थी, मुझे पता ही नहीं था कि हिंदू वेडिंग्स वेजिटेरियन होते हैं. तो कह रहे हाँ तू बड़ी शौकियां मार के गई थी, बिरयानी छोड़ के गई थी, खा वहां जाके दाल चावल. You know, one thing that's also with Pakistani जो weddings होते हैं, हमारा जो लेना देना होता है कि उसने 10 दिए तो लिख लो, वो हम उसको भी देंगे. 10 ही वापस करने. What's the but पता क्या, we had that discussion once with my parents कि अगर बिल फर्ज है, like at that time that जब मेरी शादी थी तो मेरे हालात सही थे, somebody gave me 100, right? लेकिन उसके बाद मेरी जॉब चली गई और उनकी शादी हो रही है and I can't afford it, मैं सिर्फ 50 दे सकता हूँ, तो that's just what I can afford at that moment. Yeah. लेकिन पता है कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि वो लोग ना वो पैसे लिख लेते हैं और पैसे like they put it in like a book. I've heard that one as well कि वो लोग पैसे के बंदे ने इतने दिए, वो लिख लिया और फिर वही नोट जो है वो उस बुक में रख लिया, और जब उनका कोई मौका आया तो वही नोट उसी बुक में से निकाल कर उनको वापस कर दिया. So like they don't actually use the money, they just keep it as in the लेन-देन book. I don't get, it's I don't get the लेन-देन part in Pakistan. मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम वो ही रकम उनको दे जितने बंदे की हैसियत है. अगर मेरे साथ वो हालात उस वक्त बहुत अच्छे जा रहे हो तो मेरा दिल नहीं चाहेगा मैं सिर्फ 100 दूं, शायद मैं 200 दे दूं. तुम्हें तो मैं 10 ही दूं, लेकिन चाहे जितने भी हालात सही जा रहे हो ना, मुझे एक कंजूस. लेकिन फिर होता है ना बंदे को कि हमने 100 दिए उसने, लेकिन शायद उसके हालात सही ना हो उस वक्त. Yeah. It's just one of those things I still don't understand. Yeah, me too. So yeah, there's a lot of things that we get and we don't get from DESI weddings, but it's time to wrap up this episode. Thank you so much everyone for tuning in. ये हम समझे ना समझे लेकिन enjoy तो हम बहुत करते हैं. हाँ, enjoy तो करते हैं. हाँ, खा पी के आते हैं सही. So thank you guys so much for tuning in. It was so much fun talking to you guys about DESI weddings, and we can't wait to see you in the next one. Make sure you like and subscribe to our channel and leave a comment down below on your best moments from DESI weddings. We'll see you in the next one. Bye! Allah Hafiz!